Hi, this is Satish. Let's continue with the second part of The Enemy, written by Pearl S. Buck. Let's have a quick recap of the main points of previous video. मुख्य बिंदुओं का पुनरावृत्ति. The story highlights how a Japanese doctor saves the life of an American prisoner of war. कहानी में बताया गया है कि कैसे एक जापानी चिकित्सक युद्ध के एक अमेरिकी कैदी की जान बचाता है. The story takes place on a coastal town of Japan in the year 1941. यह कहानी घटित हुई वर्ष 1941 में जापान के एक तटीय शहर में. कैरेक्टर्स, इनके मुख्य पात्र हैं डॉक्टर सदाओ होकी एंड हाना. सदाओ's education his father's main concern. सदाओ की शिक्षा उनके पिता की मुख्य चिंता थी. सदाओ मैरिड हाना. सदाओ का शादी हाना से. Wounded American soldier Tom found crawling. जख्मी अमेरिकन सिपाही टॉम रेंगता पाया गया. Sheltered a white man. एक श्वेत व्यक्ति को शरण दी गई. Let's see further. अब हम आगे देखते हैं. Let's go straight into the story. Tom operated on. Tom का ऑपरेशन किया गया. Sadao asked Hana to help him to turn the man she obeyed. सद्दाव ने हना को उस आदमी को पलटने में सहायता करने के लिए कहा और उसने उनका कहना माना. She was asked to give the anesthetic if needed. उसने कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो उसे बेहोश किया जाएगा. The bullet was still there. गोली अब भी अंदर थी. He had lost much blood. और उसका बहुत सा खून निकल गया था. Hana couldn't bear the sight and ran out of the room. और हना इस दृश्य को सहन नहीं कर पाई और कमरे से बाहर चली गई. She had never seen an operation. उसने कभी नहीं ऑपरेशन देखा था. सद्दाव went on with his work. और सद्दाव अपने काम जारी रखा. But she came with a bottle and some cotton in her hand. लेकिन वह एक बोतल और अपने हाथ में कुछ रोई लेकर आई. Then with a very clean and precise incision, the bullet was taken out. फिर उसने एक स्पष्ट और ठीक चीरा लगाकर गोली को निकाल लिया. The man quivered but was still unconscious. और तब आदमी कांपने लगा परंतु वह अब भी बेहोश था. He only muttered a few words in English. वह अंग्रेजी में कुछ शब्द बुदबुदाए. Dr. Sadao declared that the man would live in spite of all. डॉक्टर सद्दाव ने घोषणा की इन सभी के बावजूद वह व्यक्ति जीवित रहेगा. Let's proceed to the next paragraph. The young man woke up terrified. नवयुवक घबराकर जाग गया. The young man woke up. नवयुवक जाग गया. He was very weak. वह बहुत ही कमजोर था. His blue eyes were terrified when he thought where he was. उसकी नीली आंखें यह देखकर कि वह कहाँ है घबराई हुई थी. Hana consoled him not to be afraid. हना ने उससे ना डरने की सांत्वना दी. She comforted him that he would soon be strong. हना ने उसे चैन दिलाया कि वह शीघ्र ही शक्तिशाली हो जाएगा. On the third day, सद्दाव examined the wound. और तब तीसरे दिन सद्दाव ने घाव की जांच पड़ताल की. Tom asked what they were going to do with him. टोम ने पूछा कि उसके साथ क्या करने जा रहे हैं. He looked barely 17. वह मुश्किल से 17 वर्ष का दिखाई देता था. For a moment, सद्दाव didn't answer. और कुछ क्षण के लिए सद्दाव ने उत्तर नहीं दिया. Tom was a prisoner of war. और टोम युद्ध बंदी था. He should have been handed over to the police. और तब उसे
पुलिस को सौंप देना चाहिए था। Let's proceed to the next paragraph. Servants grew ruthless. नौकर निष्ठुर हो जाते हैं। The servants would not stay if Saddam hid that white man anymore in the house. यदि सद्दाव ने उस श्वेत व्यक्ति को अपने घर में और अधिक छुपाए रखा तो वे नौकर और अधिक वहाँ नहीं ठहरेंगे। People would think that they liked Americans. लोग समझेंगे कि वे अमेरिका के लोगों को पसंद करते हैं। The servants grew daily more watchful. नौकर प्रतिदिन और अधिक चौकन्ने होते गए। सद्दाव wanted the prisoner to get up on his feet. सद्दाव चाहता था कि कैदी अपने पैरों पर खड़े हो जाए। He should practice it every day till he gained strength. और वह इसका रोज अभ्यास करे जब तक वह ताकतवर ना हो जाए। The man thanked the doctor for having saved his life. और तब उस आदमी ने उसका जीवन बचाने के लिए डॉक्टर का धन्यवाद किया। The doctor cautioned him not to thank him so clearly. और तब डॉक्टर ने उसे इतनी जल्दी धन्यवाद ना देने की चेतावनी दी। सद्दाव examined the wound carefully every day. और तब सद्दाव ने रोज ध्यानपूर्वक जख्म का निरीक्षण किया। The last stitches had been pulled out. और आखिरी टाँके निकाले जा चुके थे। The young man would be all right. और तब यह नवयुवक ठीक हो जाएगा। Within a fortnight, 15 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। On the 7th day, the servants slept together. और तब 7वें दिन सभी नौकर एक साथ इकट्ठा होकर चले गए। Hannah was terrified but maintained her pride as a mistress. हना डर गई परंतु एक मालकिन होने के नाते अपना स्वाभिमान को बनाए रखा। She paid them off and thanked them for all they had done for her. उसने उनका हिसाब चुकता कर दिया और जो भी उन्होंने उनके लिए किया उसके लिए उनका धन्यवाद किया। Let's proceed to the next paragraph. The old general. वृद्ध जनरल। The old general was sick. वृद्ध जनरल बीमार था। He knew that Saddam was indispensable to him. वह जानता था कि उसका सद्दाव के बिना काम नहीं चल सकता था। He didn't want Saddam to be arrested. वह नहीं चाहता था कि सद्दाव को पकड़ लिया जाए। If he were condemned to death, who would do his operation? अगर सद्दाव को मौत की सज़ा दे दी जाती है तो उनका ऑपरेशन कौन करेगा? He didn't trust other surgeons. वह दूसरे सर्जनों पर विश्वास नहीं करता था। The general hit upon a plan. जनरल ने एक योजना सोची। It would be best if the American could be quietly killed. और तब यह अच्छा होगा, सबसे बढ़िया बात होगी यदि अमेरिकन को चुपचाप ढंग से मार दिया जाए। He had his own private assassins. और उनका खुद का प्राइवेट निजी कत्ल करने वाले थे। He could send 2 of them to his house at night. और तब वह रात को उनमें से 2 आदमियों को उनके घर भेज सकता था। Saddam agreed that it would be very natural. और तब सद्दाव ने माना कि यह बिल्कुल सामान्य होगा। Let's see the last paragraph of the story. सद्दाव saved Tom but wondered why. सद्दाव ने टॉम को बचाया पर हैरान था कि क्यों। सद्दाव thought over the general's plan. सद्दाव ने जनरल की योजना के बारे में सोची। The whole thing could go out of his hands. सारी चीज़ें उनके हाथों से निकल सकती थी। He didn't tell anything to Hannah. उसने हना को कुछ नहीं बताया। The next morning he went to the guest room. और तब अगली प्रातः वह अतिथि के कक्ष में गया। He thought of putting his boat on the shore that night.
और उसने अपनी बोट को समुद्र के तट में लगाने की सोची उस रात को। ही पुट फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, और उसमें उन्होंने कुछ खाना और कपड़े रख दिए। द अमेरिकन माइट बी एबल टू रो टू अ लिटिल आइलैंड, और तब वह अमेरिकन नाव से एक छोटे से द्वीप को जा सकता था। नो बडी लिव्ड ऑन दैट आइलैंड, और उस आइलैंड में कोई नहीं रहता था। ही गेव ऑल नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू हिम, और सारे जरूरी निर्देश दे दिए थे। इफ़ हिज फूड रैन आउट ही कुड सिग्नल हिम 2 फ्लैशेस, अगर उनके पास भोजन समाप्त हो जाता है तो वह 2 फ्लैशेस देकर इशारा कर सकता था। द यंग अमेरिकन शुक सद्दाम्स हैंड वार्मली, और तब ये युवा अमेरिकन ने सद्दाम के हाथों को गर्मजोशी से हिलाया। देन ही वॉक डाउन इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और तब वह बाग के अंधेरे में गायब हो गया। सद्दाम इन्फॉर्म द जनरल दैट द यंग मैन हैड एस्केप्ड, सद्दाम ने जनरल को सूचना दी कि युवा बचकर निकल गया था। द जनरल हैड प्रॉमिस सद्दाम टू गेट हिम किल्ड, और तब जनरल ने सद्दाम को वादा कर रखा था कि वह उसे मरवा देगा। बट ड्यू टू हिज ओन इलनेस ही फॉरगॉट टू रिस्पेक्ट हिज प्रॉमिस, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह अपने जो वादे थे उसका सम्मान नहीं रख पाया। सद्दाम गॉट हिज रिवार्ड, और सद्दाम को अपना रिवार्ड इनाम जो था वो मिल गया। ही डिडंट रिसीव एनी सिग्नल, उनको कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुई। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, उस द्वीप पर कोई नहीं था। द प्रिजनर हैड गॉन सेफ, और तब कैदी सुरक्षित रूप से चला गया था। डॉक्टर सद्दाम डिडंट लाइक द अमेरिकन्स, डॉक्टर सद्दाम अमेरिकन को पसंद नहीं करता था। वाइट पीपल वर रिपल्सिव, ये जो श्वेत लोग हैं घृणाप्रद थे। देन ही रिमेंबर्ड द हैंगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर, और तब वह उनको ध्यान में आया कैदी के कठोर चेहरे का। वाइट एंड रिपल्सिव, सफ़ेद और घृणाप्रद। स्ट्रेंज, ही थॉट, बहुत ही हैरानी है। आई वॉन्डर्ड वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे हैरानी हो रही है कि मैं उससे मार क्यों नहीं सका। Well, that's it for today. With this, we have finished the explanation of the enemy. Hope you have understood it. Thanks and bye-bye.